मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने एलजी मनोज सिन्हा और पीसीसी मेम्बरान के हमरा एशिया की सबसे तवील दो तरफा सुरंग जोजिला टनल पर जारी काम का जायजा लिया। नितिन गडकरी ने एलजी के साथ टनल में सवारी लेकर पॉइंट फाइनल तक काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इस टनल को बनाने वाली एजेंसी ने डिजिटल प्रेजेंटेशन भी पेश की। उन्होंने इस दौरान खिताब किया। नितिन गडकरी का कहना है कि टनल बनने से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी सहूलत फराहम होगी। ये टनल जम्मू कश्मीर के शुमाली और जनूबी हिस्से के कनेक्टिविटी बहाल करेगी। एशिया की सबसे तवील सुरंग की तामीर से कश्मीर में सयाहती शोबे को काफी फरोग हासिल होगा। इसके अलावा उन्होंने करगिल वार का हवाला देते हुए कहा कि ये सुरंग मुल्क की सलामती के लिए एक काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस टनल में काम कर रही सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर पूरे मुल्क को फख्र है। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ मालियत के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जोजिला टनल के बाद मरकजी वजीर जेड मोहर टनल की तरफ रवाना हुए हैं। For 1 year, we have continuously making research and study of this project with the international consultant and the expert people. And after 1 year practices, with the help of our officers, our consultants, engineers, and international consultants, we have adopted technology by which the cost of the project was reduced by 5,000 crore. This is the first time in the history of our country that we have a saving of 5,000 crore as far as the estimated cost is concerned. This is a very difficult task. The people are working here in minus 26 degree, you imagine. And that is the reason today in the film also you have seen that now what type of problems and difficulties they are facing. Already 2 deaths on the site already there. So today it is really a great pleasure for me to interact with you. This is to be a state-of-art project, and with the cooperation of Honorable LG Saab and the state government of Kashmir, it is to be very helpful for us. And this is the one of the important thing which is our dream, Kashmir se Kanyakumari. We just taken it that we start from Manali. In Manali there is Rohtang Pass. From Manali to Rohtang Pass it takes 3.5 hours. But now there is Atal Tunnel by which you can reach with only 8 minutes. After that, coming by road to Ladakh Leh, that is a beautiful Himalayan valley where we are going to construct the road and 4 tunnels. And then we will come to Ladakh and Leh. Then Ladakh and Leh we will hear. Then coming by this road and coming to Dojila Tunnel and Jhermo Tunnel going to Srinagar. Then Srinagar, we have 7 to 8 tunnels between Srinagar and Jammu, and already only 2-3 are the balance tunnel which we are going to complete as early as possible. And up there Katra, there is Katra Delhi Express Highway, and by this highway Delhi to Amritsar will be 4 hours, Katra will be 6 hours, and Srinagar will be 8 hours. By that highway we will go to Delhi, and that highway will connect to Delhi Mumbai Express Highway. And now the 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate, because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. The 49% of the capital investment in tourism, the expenditure on employment potential. I already requested the LG Saab and Jammu Kashmir government that they should plan here the resorts, adventure sports. Then just like Switzerland, we can develop lot of things here. This Baltal here from the Baba Amarnath road is here. People are coming here. So we can increase the tourism 3 to 4 times more, by which creating more employment potential to the people of Jammu and Kashmir, and which will eradicate the poverty in this area, Ladakh, Leh and Jammu and Kashmir. So this is to be a great socio-economic transformation
and I feel that this can be a great thing in the history of the India. Atal Bihari Vajpayee ji at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh and Srinagar, and this is under the leadership of Prime Minister Modi ji. We have started this. Now I am really happy that third time my visit is here, and now we are in the position that we will get this tunnel as early as possible. ये दूसरी बार मेरे रहते हुए माननीय गडकरी जी इस टनल को देखने आए हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 38% काम पूरा हो गया है और सोनमर्ग अगले साल पूरी तरह खुल जाएगा। उसका काम इंजीनियर जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में हम पूरा कर लेंगे। एक अनुरोध मंत्री जी से मैंने किया है कि उसे अक्टूबर तक पूरा करने से हमें सुविधा होगी। एक दूसरी बात मैंने मंत्री जी से कही है कि जो स्थानीय युवा हमारे हैं, लोकल यूथ, उसको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट में मिले और शहर से इन्होंने स्वीकार किया है और उसका पूरी तरह से पालन यहाँ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रोड और टनल की कनेक्टिविटी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है। तो 2 साल 3 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक बार कनेक्टिविटी यहाँ की बेहतर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इकानमी भी बूस्ट करेगी। मशहूर पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिल गया है और ये पहचान पश्मीना के चरवाहों के लिए बड़े फरोग का सबब होगी जो ज्यादातर खानाबदोश हैं। लद्दाख के सालाना तकरीबन 36 टन पश्मीना पैदा करता है। ऑल छकथोंग पश्मीना ग्रोवर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन डोरजी स्टेंजन लोनपो ने न्यूज 18 से बात करते हुए पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिलने पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने मरकजी हुकूमत, यूटी इंतजामिया और हिल काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से लोग अक्सर गलती से पश्मीना का नाम कश्मीरी पश्मीना रख देते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है और अब जीआई टैग से लद्दाखी पश्मीना की पहचान में मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी और हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री बीडी मिश्रा जी और इसी तरह यहाँ पे सांसद जमयांग जी और एडवोकेट टैशी गलसन जी सीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं स्पेशल धन्यवाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर सेक्रेटरी मिस्टर स्वागत बिस्वा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि यूटी बनने के बाद इस मतलब पश्मीना को जीए टैग के लिए काफ़ी मतलब मेहनत कर रहे थे। काफ़ी मतलब 2-3 बार दिल्ली में मीटिंग भी हो चुका था इसके बारे में। तो कल जो रिसेंटली इसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीए टैग मतलब लद्दाख की पश्मीना को मतलब वो बेस्ट क्वालिटी के तौर पे हमें जो मतलब इसको जीए टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है तो इससे हमें बहुत खुश है, खासकर चंगथांग की निवासियों के लिए क्योंकि हम देखिए अभी जीए टैग जो है लद्दाख की पश्मीना को मिले है और लद्दाख से भी हमें देखा जाए तो ये पश्मीना कहाँ से मिलता है, जो ईस्टर्न लद्दाख से, चंगथांग से, मतलब बेस्ट क्वालिटी मतलब चंगथांग रीजन से आता है। तो इसी तरह अलग अलग जगह से चंगथांग से भी 2-3 रीजन से मतलब इतना अच्छी क्वालिटी से हमें पश्मीना ग्रोवर से हम हर बार लाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सालों से हमारा जो चंगथांग का एक पश्मीना कोऑपरेटिव सोसाइटी है ले में, ये हमें हिल काउंसिल के साथ सालों से जुड़ा हुआ है। हिल काउंसिल के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर डिपार्टमेंट के साथ हमें एक कोशिश कर रहे थे कि चंगथांग में जितने भी हमारा लाइव स्टॉक है खासकर शीप एंड गोट्स को लेकर, तो इसको हमें रिवाइव करने के लिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से, हिल काउंसिल की तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जीए टैग मिलने के बाद अब लोगों में फिर एक जोश आया, जज्बा आया कि हम फिर से इस पश्मीना को रिवाइव करना होगा क्योंकि देखिए ना, जितने भी हम पश्मीना के साथ कल प्रोडक्ट बनेंगे इसको हम वैल्यू एडिशन करेंगे फर्दर। तो इन चीज़ों को लेकर अब जब जीए टैग मिलने के बाद उसको हमें जो अच्छी क्वालिटी में मतलब इसको रेट मिलेंगी। तो जितने भी हमारा जो आमदनी लोग हैं वहाँ पे जो ब्रीडर्स है तो उन लोगों तक हमें मतलब पैसा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपना ऑल चंगथांग वालों को हम मुबारक देना चाहूँगा कि जीआई टैग मिलने के बाद जो है हमारा बहुत दिलीला मांग था वो पूरा हो चुका है। इससे जो है पश्मीने का काफ़ी प्रमोट होगा और इसका फैसिलिटीज़ मिलेंगे, खासकर जो इस पश्मीना से रिलेटेड है। पहले जो पश्मीना को जो है कश्मीर कहते थे,
तो आज की डेट से हम जीआई टैग मिलने के बाद हमारा लद्दाख का फ़ख्र है कि पश्मीना जो है हमारा जीआई टैग से जोड़ा हुआ है। और इसमें बहुत सारे हमारे सहयोग दिए हैं। लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल हो, सेक्रेटरी जो डीकॉम साहब है, और इसी तरह जो है सबों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें जीआई टैग मिला। और इससे हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो है पश्मीने पे बहुत सारे प्रमोशन होगा और अच्छा रेट मिलेंगे। असली जो है हमारा अल चंगतंग पश्मीना ग्रोथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मकसद ये है कि हमने सबसे पहले जो है पश्मीना को ग्रोथ करने वालों को स्टैंड रखना है, उनको बचाना है। तो असली जो है डिपार्टमेंट के सेंसस के लिहाज से तो काफ़ी 40 टन तक कहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमने 2011 में 36 टन तक हमारा ग्रोथ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जो है काफ़ी इंक्रीज होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, क्योंकि जो है मौसम पर डिपेंडेंट है। तो हमारा सबसे जो हाईएस्ट हमने जो परचूमेंट किया है वो 35 टन तक है। हमारा लोएस्ट जो सबसे कम जो है हमने 11 टन तक हमने परचेज किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख की नुब्रा वैली के पंचमेक गांव में खुबानी के फूल खिलने का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने मुख्तलिफ लिबास, सकाफती प्रोग्रामों और रिवायती रक्स के साथ जश्न मनाया। तलबा ने ड्रामा पेश करते हुए खुबानी के फ़ायदे बताए। खुबानी का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। पिंजमी गांव में यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल मनाया गया, जहाँ पे बहुत से तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए और इसी के साथ साथ यहाँ पे बच्चों ने ड्रामा भी किया, जिसमें एप्रिकॉट का क्या यहाँ पे फ़ायदा है उसके बारे में भी बताया और एप्रिकॉट से क्या क्या चीज़ें बनता है और उसमें बिजनेस में कितना बढ़ावा होता है इसके बारे में भी यहाँ के लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया। थैंक यू आपको भी न्यूज़ 18 को आज आप इस फेस्टिवल को कवरेज कर रहे हैं। तो ये फेस्टिवल एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल ये फर्स्ट टाइम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हो रहा है। तो इसके लिए मैं यूटी लद्दाख और लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल टूरिज़म डिपार्टमेंट को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उनका भी कोलैबोरेशन पर और गाँव वाले का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा कल्चर्स अभी तक हुआ है और हेरिटेज जो हमारे पास जो पुराना इंस्ट्रूमेंट या जो भी हमारे पास पुराने बर्तन या जो भी सब कुछ का यहाँ एक अच्छा एग्जीबिशन भी हुआ है। जुलाई तेने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चोस ने ई जुली में तो गास्तोन वो लोसुम ने फला सिचेस शुरू चोस्ते ने तेने ननी 2021 ने नांगाजे तुरतुना टैक्सी चोस्ते इन पिंचिमिक से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और इस टूर्नामेंट में खवातीन की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद लड़कियों को क्रिकेट में आगे लाना है। एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम चौधरी ने टॉस करके टूर्नामेंट का आगाज किया। फाइनल मैच ग्रीन चैंप डोडा और स्पोर्ट्स फिटनेस हब के दरमियान खेला गया। ग्रीन चैंप्स डोडा ने
टाइटल जीत लिया और इस मौके पर डीसी डोडा विशेष पाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम चौधरी ने फातिह टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को नकद रकम और ट्रॉफी से नवाजा। ये जो पुलिस वालों ने इतना गर्ल्स के लिए फर्स्ट टाइम इतना ऑर्गेनाइज करवाया टूर्नामेंट, हमें बहुत अच्छा लग रहा है खेल के, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया और अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए पूरी सेफ्टी वगैरह का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया। जैसे कि अगर हम चुनाव की बात करें तो यहाँ पे हमें उतने इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन पर सेफ्टी डोडा पुलिस टाइम टू टाइम ऐसे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। पहले नहीं होते थे, पर अब ये सेंट्री इन्होंने स्टार्ट किया है और हमारी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए और इससे हमें काफी ज्यादा फायदा, काफी एक्सपीरियंस मिलता है मैचेस खेलने का, और होप कि अगर ऐसा चलता जाए आगे के टाइम में तो हम नेशनल इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। जो डोडा की बच्चियां हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उनको इनकरेज करने के लिए हमने ये मैच रखा है। इससे पहले भी हमने मैच करवाए हैं, भद्रवा में, गंदो में, वो मेल के थे। अभी हमने ये फीमेल के लिए स्पेशल मैच रखा है डोडा में। ये इसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आज ही शाम को क्लोज हो जाएगा। टैक्सी यूनियन मेंढर ने मुगल रोड को खोलने का मुतालबा किया। टैक्सी यूनियन मेंढर के सदर हबीबुल्लाह खान ने कहा कि राजौरी पुंछ अजला को वादी कश्मीर से मिलाने वाली एक अहम सड़क का मुसलसल बंद होना अफसोसनाक है, क्योंकि इसने बहुत से लोगों को महरूम कर दिया है जो श्रीनगर का सफर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बंद होने की वजह से तलबा और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। आज ये अपनी सरकार से, डीसी पुंछ से, गवर्नर इंतजामिया से, हमारी ये टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से हमारी एक गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके और तेज रफ्तारी के साथ काम चलाया जाए। वह मुग रोड के ऊपर वो जो बर्फ के तोदे रोड के अंदर डाले हुए हैं उनको हटाया जाए और गाड़ियां चालू की जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये इंतजामिया से ये अपील है कि इस रोड को 24 घंटे खोलने का इंतजाम किया जाए, ताकि सर्दियों के मौसम में भी ये रोड खुला जाए और इसके लिए टेंडर का इंतजाम किया जाए, ताकि ये रोड जो हमारी है ये 12 महीने खुला चले, ताकि हमारे पब्लिक को परेशानी ना आए, हमारे पेशेंटों को परेशानी ना आए, हमारे बच्चों को परेशानी ना आए। गवर्नमेंट इंतजामिया से हमारी यही अपील है, हम इसी पर इत्तेफाक चाहते हैं। वजीर कानून किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर दौरे की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट भी किया। किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान को हकीकी जामिया कौम बताया। इस ट्वीट में किरण रिजिजू ने लिखा कि मैं श्रीनगर में हूं, मेरे हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोटसूर हैं जो मणिपुर से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस ताशी रब्स्तगान लद्दाख से है। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस मोक्षा काजमी खजूरिया का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर में कोरोना के खिलाफ मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। हेल्थ सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने JLNM श्रीनगर में हेल्थ डायरेक्टर के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे की जानिब से की गई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं। किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फ़िलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहाँ तहाँ टेस्ट करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर, हमारे कई हॉस्पिटल है यहाँ पे, बिमना, जैसे कि बिमना की बात करें या बोने जोश हॉस्पिटल, कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सा? JVC बिमना, बिमना और बोने। देखिए, काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज़ की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिमूव करेगी। सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मसला है, वहाँ क्रॉसिंग में पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ जरूरत थी एक क्रॉसिंग ब्रिज। बिल्कुल डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है इसलिए हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये PWD से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाई ओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए, ताकि लोगों को
क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मास्किंग मैंडेटरी अभी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं। हमारा जो अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल जो भी है, वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायज़ा लिया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को ट्रीट भी किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है और इसके चलते आज यूटी के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल हुआ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए तफसीलात फराहम की। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे, इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है। आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और आप जैसे देख रहे हो प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब। हेडलाइंस